Deepak from Times Now has asked, there are only 4 days left before 20th July deadline expires. When is consular access likely? Will we go ahead with access despite Pakistan not extending unimpeded and unrestricted and unsupervised access? What is the likely next step by the government on this? Maha from CNN News 18 has asked, did India get unhindered and unimpeded access to Kulbhushan Jadhav today? Mandira from The Week has asked, is there an update on the Kulbhushan Jadhav case? Report suggests that India will get consular access today. Will India file a petition in Islamabad High Court? On Kulbhushan Jadhav, you would know that we have been requesting for unimpeded, unhindered and unconditional consular access to him. And on the basis of assurances provided, our officials have proceeded for the meeting today. We are yet to hear from them. They have to return and provide us a report. And once we assess the situation based on their report, we will provide our comments. Yatin, you can move on to the next question. So, Siddhant from Beyond has asked, any update on Tablighi Jamaat foreign national? See, Siddhant, on the Tabligh matter, there has been progress. The number of foreign nationals, in fact, a number of them who had been charge sheeted for indulging in Tabligh activities on tourist visa, they had filed an application for plea bargain in our courts. And the courts have considered their case. The Delhi Metropolitan Magistrate has, on the basis of their application, he has fined a number of journalists, a number of Tablighis, and asked them to leave the country. So the next question is on Daimar Pasha Dam. Madhurendra from News Nation has asked, पाक अधिकृत कश्मीर में चीन के फंड से बन रहे डैम के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है, भारत का अगला कदम क्या होगा? दीपक रंजन फ्रॉम पीटीआई पाशा हैज आस्क्ड, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान द्वारा चीन के सहयोग से दाइमर बाशा बांध का निर्माण शुरू होने की खबर आई है, मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है? गीता मोहन फ्रॉम इंडिया टुडे हैज आस्क्ड, रिएक्शन टू पाक चाइना स्टार्टिंग वर्क एट दाइमर बाशा डैम. See, on the Amar Basha Dam, I had made our position clear, I think sometime in May. Our position remains unchanged. It is consistent and clear. The entire Union Territory of J&K and the Union Territory of Ladakh have been, are and will be an integral and inalienable part of India. We have strongly protested against the construction of this dam to the government of Pakistan. This dam will lead to submergence of a large part of land of the Indian Union Territories of J&K and Ladakh. And we condemn the continuous attempts by Pakistan to bring about material changes in Indian territories under its illegal occupation. We have also consistently conveyed our protest and shared concerns with both China and Pakistan on all such projects in the Indian territories under Pakistan's illegal occupation where it has no locus standi. Set of questions is on India-Iran. Anita Joshua from Telegraph has asked, is it true that India could lose the Farzad B gas field because Iran is giving it to a local company as OVL has made no progress? Madhurendra from News Nation has asked, ईरान के साथ चाबहार प्रोजेक्ट में भारत की फंडिंग और निवेश पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार का क्या मत है? Abhishek Dulia from NHK Japan has asked, could you provide more clarity on the status of Chabahar rail project as there are reports that India is no longer a part of it? Maha from CNN News 18 has asked, is India out of the Chabahar Zaidan project and Farzad B as well? If yes, what has Iran told India as to why they have done this? Is the agreement on Chabahar Zaidan scrapped? The similar questions were asked by Pushkar Bankar, Deepak Ranjan, Geeta Mohan, Athar Khan, Pankaj Pandey and Mandira. I have a detailed response to this, and we have seen some speculative reports about Chabahar port and the Chabahar Zaidan railway project. See, with regard to the port, you are all aware that a long-standing commitment from 2003 was finally operationalized in 2016 during the Prime Minister's visit to Iran. Since then, despite the difficulties posed by the sanctions situation, there has been significant progress on the port project. An Indian company has been operating the project since 2018 and has steadily scaled up the traffic at the port.
Since December 2018, 82 vessels have been handled there, including 52 in the last 12 months alone. The port has handled 12 lakh tons of bulk cargo and 8,200 containers. Proactive measures are currently underway to increase the usage of Chabar port both for Afghanistan and Central Asia. Now coming to the proposed railway line, the Chabar-Zaidan railway line. On this, IRCON was appointed by the Government of India to assess the feasibility of the project. And it was working with CDTIC, which is an Iranian company under the Ministry of Railways. IRCON has completed the site inspection and review of the feasibility report. Detailed discussions were thereafter held on other relevant aspects of the project, which had to take into account the financial challenges that Iran was facing. In December 2019, these issues were reviewed in detail at the 19th India-Iran Joint Commission meeting, which was held in Tehran. The Iranian side was to nominate an authorized entity to finalize outstanding technical and financial issues, and this is still awaited. There are questions also on the Farzad B gas field. See, the gas field negotiation, the Farzad gas field negotiations, in which ONGC was involved in the discovery stage, have been going on, and the follow-up bilateral cooperation was, however, impacted by policy changes on the Iranian side. In January 2020, we were informed that in the immediate future, Iran would develop the field on its own and would like to involve India appropriately at a later stage. So this matter remains under discussion. So the next question is from Siddhant. Pak had allowed Afghan goods to be exported via Wagah. Do we have comment on this? See, Siddhant, this is another example of Pakistan's creation of a mirage of goodwill. Let us be clear on this. Pakistan is not allowing Afghan trucks to carry Afghan goods and is seeking monopolistic transport practices. It is not allowing Afghanistan two-way transit rights as committed under Article 3 of the Freedom of Transit of Afghanistan of the Pakistan Transit Trade Agreement. This is the APTTA agreement. So Pakistan has been following a policy of creating captive markets by denying full transit access to Afghanistan, by restricting products from India and other countries. It is failing to fulfill its own commitments under APTTA. So Pakistan has even denied transit of humanitarian grant assistance, including wheat from India to Afghanistan. So next set of questions are on South China Sea. Madhurendra from News Nation has asked, South China Sea में अमेरिका का स्टैंड कि चीन का कोई ऑफशोर क्लेम नहीं माना जाएगा, उस पे भारत का क्या स्टैंड है? Manas from PTI has asked, Secretary of State Pompeo has called China's behavior in South China Sea aggressive. What is India's reaction to that? See, on South China Sea, we had articulated our position, and I think this was on 21st of May this year. Our position on this issue is clear and consistent. South China Sea is a part of global commons, and India has an abiding interest in peace and stability in the region. We firmly stand for the freedom of navigation and overflight and unimpeded lawful commerce in these international waterways in accordance with international law, notably UNCLOS. India also believes that any differences be resolved peacefully by respecting the legal and diplomatic processes and without resorting to threat or use of force. So this is our position on the South China Sea. So next set of questions is on gold smuggling case. Amriti Sen from Hindu Business Line has asked, can MEA please clarify if the attaché at UAE consulate in connection to gold smuggling in Trivandrum came to Delhi on Sunday and has now left the country? Similar questions have been asked by Anup from Manorama News, Suchitra from News 8 in Tamil, Maha from CNN News 18, Prashant from Asia Newsnet, Manoj Menon from Mathrubhumi, Jomi Thomas from Malayalam Manorama, and Saju Mohan from Manorama News. See, on this matter, we have seen the media reports,
And what I can say at this point is that we are in touch with the UAE authorities and we are in touch with them regarding the investigation in this matter. Sir, Narendranath Mishra from Now Bharat Times has asked, कुवैत में लाखों इंडियन पर वहां के कई नए रूल का असर हो सकता है, क्या भारत ने कुवैत से कांटेक्ट किया है? नरेंद्र जी, इसका मैंने जवाब शायद पिछले ब्रीफिंग में दिया था कि कुवैत के जो घटनाक्रम है उस पर हम बारीकी से नज़र हम रखे हुए हैं और इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत हुई थी विदेश मंत्रियों के लेवल पे। हमारे कुवैत के साथ उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंध हैं और ये संबंध जो हैं काफ़ी गहरे हैं। भारतीय समुदाय का कुवैत में और उस रीजन में अन्य जो देश हैं उन देशों में काफ़ी सम्मान है, उनका काफ़ी योगदान है और इस योगदान की काफ़ी सराहना भी की जाती है। तो हमारी कुवैती पक्ष से ये अपेक्षा रहेगी कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपना निर्णय लेंगे। So next set of questions are on Nepal. Madhurendra from News Nation has asked, नेपाल के पीएम के भगवान राम पर दिए बयान पर भारत का क्या रुख है? Siddhant from Vion has asked, any reaction to comments by Nepal PM saying Lord Ram was a Nepali? Similar question was also asked by Pranay. See, the deep and culturally rich heritage of our country is known all over the world. You would have already seen the clarification issued by the Ministry of Foreign Affairs of Nepal. So I don't want to comment any further in this matter. I'll also repeat in Hindi, भारत का जो विशाल और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है ये पूरे दुनिया में सब जानते हैं इस बारे में और नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस मामले को लेकर एक बयान भी जारी किया हुआ है, इसलिए मैं इस पे और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। So next question is from Suchitra, News 18 Tamil. Are there flights to be scheduled under phase 5 of Vande Bharat mission? Suchitra, as of now, phase 4 is going on. I had in my update told you this phase 4 is going on from the 15th of July. It will go on till the 31st of July. And when we reach at an appropriate stage, we will inform you about the launch of phase 5 if there is any. So next question is from Suman Sharma from European Security and Defence. In yesterday's India-EU initial remarks, Secretary West mentioned about a new dialogue on maritime security. Could you share details about this and how is it different from the previous ones? Suman, I think you are referring to the para 7 of the roadmap 2025, which refers to this maritime security dialogue. We earlier had an official level exchange on this subject and we have been having official level exchanges in fact on this subject. Now this dialogue is being institutionalized. What I understand is that this dialogue is in the nature of sharing of information and the sharing of experience. This is what I can say by way of response to your question. Devi Rupa from The Wire has asked whether MEA is aware about an incident involving a Nigerian student being beaten up at Roorkee Institute of Technology. Devi Rupa, we are not aware of any incident involving Nigerian students. So next set of questions are on China. Shrinjoy from Times Now has asked, do PLA troops remain in the Finger 5 area? What has India said about reducing the masses of troops and heavy weapons, including tanks and artillery, in the rear echelons? When is thinning out likely? Nainima from The Print has asked, what is the latest update on China? It seems the disengagement process is going to be long drawn. Similar questions have also been asked by Pranay Upadhyay from ABP. I have a readout in response to these questions. You would be aware that India and China have been engaged in discussions through established diplomatic and military channels to address the situation along the LAC in India-China border areas. As you are aware, the special representatives of India and China on the boundary question, Sri Ajit Doval, National Security Advisor of India, and Mr. Wang Yi, State Councillor and Minister of Foreign Affairs of China, had a telephone conversation on the 5th of July 2020. A meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, WMCC, was also held on 10th of July 2020.
In these meetings, the two sides have agreed on complete disengagement of the troops along the line of actual control and de-escalation from India-China border areas for full restoration of peace and tranquility in the border areas in accordance with bilateral agreements and protocols. In this context, the Indian and Chinese senior commanders held their fourth meeting at Chushul on 14 July 2020. The commanders reviewed the progress of implementation of the ongoing disengagement process and also discussed further steps to ensure complete disengagement at the earliest. The two sides remain committed to the objective of complete disengagement and full restoration of peace and tranquility in the India-China border areas. The two sides will continue their diplomatic and military engagements to achieve these outcomes. I would like to add that the process of disengagement along the LAC is complex and therefore unsubstantiated and inaccurate reports need to be avoided. The disengagement process currently underway in the western sector is specifically aimed at addressing face-off situations and close-up deployments of troops along the LAC. It is based on an understanding between senior military commanders. Both sides have agreed at specific points to redeploy towards their regular posts on their respective sides of the LAC. These are mutually agreed reciprocal actions to be taken by both sides. And as I have already conveyed, it is an ongoing process. This mutual redeployment should not be misrepresented. There is absolutely no change with respect to India's position on the line of actual control. We are fully committed to observing and respecting the LAC. Any unilateral attempts to change the status quo along the LAC are not acceptable. Any further questions, Yatin? Thank you. So this concludes today's media briefing. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव प्रेस को संबोधित कर रहे थे और कई मुद्दों पे उन्होंने बातचीत की। चाहबार जो बंदरगाह है उस पर भी उन्होंने बात की। इसके अलावा पाकिस्तान में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मसले पर उन्होंने कहा कि जो काउंसिलर एक्सेस उनको दिया गया उसको लेकर क्या अपडेट है, क्या खबरें हैं, किस तरह की परिस्थितियां रही, इसको लेकर वहां के अधिकारियों से अपडेट का इंतज़ार है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वंदे भारत का चौथा चरण चल रहा है और लगातार भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापसी उनकी हो रही है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, साउथ चाइना सी के मसले पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो पूरा इलाका है ये अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र है एक तरह से, और वहाँ पे शांति और स्टेबिलिटी, स्थायित्व बनी रहे, ये भारत की लगातार कोशिश रही है। तो ये था अनुराग श्रीवास्तव, प्रवक्ता भारतीय विदेश मंत्रालय। और हम रुख करते हैं अब अपने अगले बुलेटिन की तरफ, हमारे ख़ास बुलेटिन जिसमें हम दिन भर की तमाम ख़बरों को समेट कर लाते हैं दिन भर की, और अपने संवाददाताओं से आपको जो तमाम ख़बरें हैं उसका अपडेट्स देते हैं। और शुरुआत करते हैं अपने इस बुलेटिन की, और सबसे पहली ख़बर भारत चीन से ही जुड़ी हुई। लद्दाख सेक्टर में भारत चीन LAC पर वार्ता का दौर लगातार जारी है और जिसे लेकर आज ताज़ा जानकारी सामने आई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा गतिरोध को दूर करने के लिए भारत और चीन लगातार स्थापित सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में 14 जुलाई को चुशूल में भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच कमांडर स्तर के चौथे दौर की वार्ता हुई, जो 5 जुलाई को दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुई सहमति के अनुरूप रही। चौथे दौर की वार्ता में सेना के पीछे हटने पर बनी सहमति के क्रियान्वयन पर प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि किस तरह से पूरी तरह से सेना के पीछे हटने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। दोनों पक्ष इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि ये प्रक्रिया जटिल है और इसके लिए लगातार सत्यापन की ज़रूरत है। दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य स्तर पर नियमित बैठकों के जरिए इस मुद्दे को आगे ले जा रहे हैं। ये आज भारतीय जो रक्षा मंत्रालय है उनकी तरफ से आज बयान ये आया है। वही खबर ये भी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से लद्दाख और जम्मू श्रीनगर के दौरे पर जाएंगे और उनके साथ
सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। 17 जुलाई को राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करेंगे और 18 जुलाई को वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री वहां का ताज़ा स्थिति का जायजा लेंगे और इस महीने की शुरुआत में 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का दौरा किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां अग्रिम पोस्ट पर जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया था। पीएम ने थल सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की थी। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से कड़ा संदेश दिया था। हालांकि मंगलवार को कोर कमांडर स्तर की चौथे दौर की वार्ता दोनों देशों के बीच हुई। ये बैठक मैराथन बैठक रही और 14 घंटे से ज्यादा चली। भारत ने चीन को दो टूक शब्दों में कहा कि चीन को पैंगोंग एरिया में फिंगर 8 से पीछे जाना होगा। साथ ही सैनिकों की तैनाती कम करने के लिए अपनी शर्तें रखी। और हमारे साथ हमारी संवाददाता नंदिता डागर जुड़ी हुई हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। नंदिता, जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो आज खबर आई है वो ये बताती है कि बातचीत तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है उसको लेकर कुछ अपडेट उस तरह से नहीं है। क्या इस वक्त कहा जा सकता है? जी ओम प्रकाश, ऐसा बताएं आपको कि गलवान में, हॉट स्प्रिंग्स में और गोगरा में, इन 3 जगहों पर तो डिसएंगेजमेंट कुछ हद तक हुआ है। 1.5 किलोमीटर से लेके 1.5 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर तक चीनी पीछे गए हैं कुछ उन स्टैंड ऑफ पॉइंट से, लेकिन डेप्सांग प्लेन्स और चौथा पैंगोंग सो लेक, ये जो 2 हैं, इनके ऊपर ये जो चौथी कोर कमांडर्स मीटिंग थी जो कि 14 जुलाई को हुई। इससे पहले की, जैसे कि आप जानते हैं, 6 जून, 22 जून और 30 जून को हुई थी। लेकिन ये अलग इसलिए थी क्योंकि इसमें कैरी फॉरवर्ड की गई, ये सारे मुद्दे डिस्कस किए गए। चारों फ्लैश पॉइंट्स जिसमें डेप्सांग भी है, गलवान भी है और गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स भी है। लेकिन मेन सबसे कठिन ये होने वाली थी क्योंकि पैंगोंग सो लेक एक ऐसी जगह है जहां पर इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स फेस टू फेस नहीं है, यानी कि फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 के बीच में उनका थिनिंग हो जाए, धीरे धीरे वो वहां से अपने आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल्स और अपनी ट्रूप्स को हटा ले। ये उस मीटिंग के एजेंडा में था, क्योंकि ये मीटिंग इंडियन साइड में की गई, यानी चुशुल मोल्दो की इंडियन साइड ऑफ LAC पे हुई और ये काफी लंबी चली, 15 घंटे से ज्यादा लंबी मीटिंग चली। इसके बाद जो हमारे देश की एपेक्स यानी शीर्ष एक बॉडी है, चाइना स्टडी ग्रुप, उसको हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने ब्रीफ किया और उस मीटिंग में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी मौजूद। जी नंदिता, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। अब अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान उच्च न्यायालय में सचिन पायलट सहित 19 विधायकों की याचिका पर सुनवाई टल गई और अब इस मामले की सुनवाई डबल बेंच करेगी। मुख्य न्यायाधीश तय डबल बेंच करेंगे और सचिन पायलट सहित 19 विधायकों पर व्हिप के उल्लंघन के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। और इस खबर को लेकर अपडेट भी है और गौरतलब है कि कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि इन 19 विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को सभी को नोटिस जारी किया था। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ रहे हैं मुरारी गुप्ता। मुरारी, ये बताएं सबसे पहले कि जो अभी एक अपडेट आ रहा है कि जो डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी, सचिन पायलट ने जो याचिका दायर की, इससे जुड़ी क्या अपडेट है? उनका अगर बात करें आज के जो घटनाक्रम की, तो जो 19 विधायक है जिसमें सचिन पायलट समेत है, जिनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ने व्हिप के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया था, उन पर आज हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी दोनों ने ऑनलाइन जुड़े राजस्थान हाई कोर्ट में और उन्होंने अपनी याचिका दायर की। और हालांकि याचिका में उन्होंने संशोधन के लिए याचिका को वापस लिया, जिसके इस प्रार्थना को अदालत ने स्वीकार किया और कहा कि नए संशोधन के साथ आप आइए। कहा जा रहा है कि आज शाम को 7 बजे 7:30 बजे भी इस पर सुनवाई हो सकती है। हालांकि ये पुष्ट नहीं है कि वो होगी या नहीं होगी।
वहीं दूसरी तरफ अगर सीपी जोशी की तरफ से वकील जो पेश हुए, उनका कहना था कि अदालत ने सुनवाई के दौरान तो सीपी जोशी को कार्रवाई करने के अधिकार से रोका नहीं है, यानी कि वो अभी भी इस मुद्दे पर कार्रवाई कर सकते हैं। यानी इस पे स्थिति अभी साफ नहीं है कि डिवीजन बेंच आज सुनवाई करेगी या नहीं इस पूरे मामले की। जी, अभी कहा जा रहा है कि शाम को ऐसी खबरें आई थी कि, लेकिन अभी ये पुष्ट नहीं हुआ कि सुनवाई होगी या नहीं होगी। इसमें एक चीज और ओम प्रकाश मैं जोड़ना चाहता हूं कि इसमें सरकार भी इसमें शामिल होने के लिए कैबिनेट उन्होंने दाखिल की है, जिसमें जो मुख्य सचेतक हैं राजस्थान सरकार के महेश जोशी, वो अदालत में पेश हुए और अपने वकील के जरिए कैविएट उन्होंने इसमें दाखिल की कि चूंकि ये पूरे मामले में जो सचिन और विधायक 19 विधायक उन्होंने कहीं भी कांग्रेस पार्टी को इसमें पार्टी नहीं बनाया था, तो उनका कहना था कि चूंकि ये मामला पार्टी से जुड़ा हुआ है तो इससे कांग्रेस को भी इसमें पार्टी बनाया जाए, उनकी कैबिनेट को। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी गुप्ता जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम खबरों पे अपडेट देने के लिए। और अब बिहार का रुख करते हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की अक्षीय रेखा के बिहार से खिसक जाने के कारण अब अगले कुछ दिनों में वर्षा में कमी आएगी, लेकिन दक्षिण पश्चिम बिहार में वज्रपात और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं चंपारण के बगहा दियारावर्ती क्षेत्र में बाढ़ से बांध क्षतिग्रस्त हो गया है। बाढ़ का पानी घुसने से दियारा में तबाही मच गई है। रेल लाइन के लिए अधिकृत जमीन के कच्चे बांध को गंडक नदी और मूर्तिधार ने अपने आगोश में ले लिया है, जिससे बांध पर बसे दर्जनों परिवार के सामने कई मुश्किलों का पहाड़ टूट गया है। बांध का दियारा से निचले इलाकों से कई परिवार शरण लिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज से बीती रात 3:30 बजे के आस 3.30 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद गंडक नदी में उफान के चलते बाढ़ और कटाव जैसे हालात निचले इलाकों में पैदा हो गए थे। लोग मवेशियों के साथ बांध पर शरण लिए हुए हैं। पिपरासी प्रखंड के मघौली, मछा, भुईधरवा सहित दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से जुड़ रहे हैं सलमान हमारे साथ ज़्यादा अपडेट के साथ। सलमान, क्या अपडेट इस समय, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं मौसम विभाग के जरिए ये कहा जा रहा है कि बारिश अब कम होगी और अगले कुछ दिनों में जो मानसून के बादल हैं वो अब दक्षिण की ओर यानी झारखंड की ओर रुख करने से हो सकता है बिहार को राहत मिले। देखिए, ये तो थी अगले 24 घंटों के लिए। अभी जो मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है उसमें है 18, 19 और 20 तारीख को सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और छपरा के इलाकों में तेज और भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और अभी आपको बता दें कि जो गोपालगंज का इलाका है उत्तर बिहार में ही, वो वहाँ पर एक नवनिर्मित पुल था जिसके अप्रोच रोड का एक पुलिया पानी में बह गया है और इसकी वजह से ये पुल जोड़ता है गोपालगंज को पूर्वी चंपारण से। तो इस तरह से हम देखें तो बेतिया गंडक नदी खास तौर से जो जैसे अभी आप बता रहे थे कि 3.3 लाख क्यूसेक पानी जो गंडक बैराज से बुधवार को छोड़ा गया था, वो पानी अब फैल रहा है। जो जैसे जैसे ये जिलों में जा रहा है वो तबाही मचा रहा है वहाँ पे, और इस वजह से बहुत सारी आबादी। यहीं पे आपको रोकूंगा, हमारे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपडेट्स के लिए। और असम की बात कर लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्य असम में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। राज्य के 26 जिलों की 93 राजस्व सर्किल में 3,376 गांव पानी में डूबे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ का पानी कुछ नए इलाकों में प्रवेश करने की वजह से राज्य में 36,42,546 लोग प्रभावित हुए हैं। बारपेटा जिला राज्य में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। राज्य के गोपालपाड़ा और मोरीगांव जिले में तकरीबन 4 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 7 और लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही इस मौसम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 66 तक पहुंच गई है। राज्य की नदियां खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से 1,27,000 हेक्टेयर फसली भूमि को नुकसान पहुंचा है। गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि राष्ट्रीय आपदा बल NDRF और राज्य आपदा बल SDRF के नेतृत्व में 180 बोट्स के जरिए बचाव कार्य चलाया जा रहा है। और हमारे साथ इस खबर पर
ज़्यादा अपडेट के साथ कमल बोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, सबसे पहले यही कि क्या है आने वाले दिनों के लिए अपडेट्स, खासकर अगर असम की बात करें तो? बिल्कुल ओपी, देखिए जिस तरीके से आपने जो आंकड़ा बताया था ये साबित करता है कि कितना गंभीर सिचुएशन बना हुआ है फिलहाल असम में, और सिचुएशन में काफ़ी कोई भी चेंजेस अभी तक फिलहाल नहीं आया है। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि पिछले 48 घंटों में यहाँ पे बारिश में थोड़ी सी कमी दिखने को मिला है जगह जगह पे, जिसके कारण कुछ एरिया ऐसे भी है जहाँ पे वाटर लेवल का जो बढ़ रहा था उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखने को मिला है। हालांकि अभी भी हर एक जगह पे पानी, नदी के पानी जो डेंजर लेवल है, डेंजर लेवल के ऊपर से ही बह रहा है, तो ये चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन अगर हम लोग IMD के जो ये वार्निंग जारी किया गया था, अगर उसको हम देखें तो आने वाले 72 आवर्स 48 आवर्स में जो जगह जगह पे थंडर शावर या फिर लाइटनिंग और साथ में ही हैवी टू हैवी रेनफॉल होने का अभी भी बातें कही जा रही है, प्रेडिक्शन किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो जरूर आने वाले कुछ दिनों में हालात में सुधार तो नहीं दिखेंगे, लेकिन स्थिति कुछ गंभीर होने का आशंका अभी भी बना हुआ है। जी कमल, तो पूरा का पूरा सिचुएशन अभी बारिश के ऊपर निर्भर है। अगर बारिश कमल, हमारे पास समय की कमी है, माफ करेंगे, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को वंदे भारत अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कुल 6,87,000 फंसे हुए भारतीयों को 15 जुलाई तक वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया गया है। और हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र का। शैलेंद्र, आज बहुत विस्तार से हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, क्या प्रमुख बातें निकल कर आई और खासकर आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ सूचना दी गई है सामने? कई प्रमुख बातें आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कही है। सबसे खास बात यह है कि एयर बबल के तहत हम जानते हैं 3 देशों के साथ जो सीमित स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है उसको लेकर अंतिम चरण में एक तरह से बातचीत है, और फ्रांस और अमेरिका के साथ जो एयरलाइन की जो शुरुआत वो होने वाली है। तो ऐसे में ये एक बहुत अहम बात उन्होंने बताई। साथ ही साथ जर्मनी से बातचीत चल रही है, फ्रांस से जो उड़ानें हैं वो बस अब शुरू ही होंगी। 28 उड़ानें जो अगले 15-16 दिनों में है फ्रांस और भारत के बीच होंगी। तो बहुत अहम बात कही। और शैलेंद्र, माफ करेंगे, हमारे पास वक्त की कमी है बेहद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी को देने के लिए। तो जिस तरह से आज मंत्रालय ने भी कहा है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, चौथे चरण वंदे भारत का वो शुरू हो चुका है जो 24 जुलाई तक चलेगा। और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए काफ़ी संस्थाएं अपनी अहम भूमिका निभाती हुई दिख रही हैं। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान भी BPCL के साथ मिलकर देश के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी प्रयासों में जुटा है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। कोरोना महामारी से संबंधित समस्याओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान चिकित्सा दल की उपस्थिति में गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक बना रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर में दोरंगला गांव में सामाजिक दूरी को अपनाते हुए लोगों को विशेष कोविड सुरक्षा किट प्रदान की गई, जिसमें कूड़ादान, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक डोर टू डोर अभियान चलाया गया। गुरदासपुर जिले विच दोरंगला पिंड विच कोरोना के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। घर जाके सैनिटाइजर वंडे है, मास्क वंडे है, कूड़ेदान दिते है। यही नहीं, साडे डॉक्टरां ने घर जाके लोगों को कोरोना बारे जानकारी दी है तो उहदे नाल लड़न लई उन्हां नूं शक्ति भी दी है। पंजाब में गुरदासपुर के दोरंगला गांव में 400 ग्राम परिवारों को विशेष कोविड सुरक्षा किट प्रदान की गई। स्वच्छता पखवाड़ा 2020 के तहत CSR पहल के रूप में बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के साथ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। पेट्रोलियम की तरफ से स्वच्छ भारत के अंतर्गत गुरदासपुर दोरंगला में ये कार्यक्रम करने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, पूरे देशवासी हमारे साथ जुड़ें और स्वच्छता को अपनाएं, अपना योगदान दें, अपने 100 घंटे दें, अपने 2 घंटे रोज श्रमदान करके अपना योगदान दें।
गौरतलब है कि बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्था है जिसका दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में विभिन्न सतत आजीविका परियोजनाओं के जरिए महिला सशक्तिकरण का 18 वर्ष से भी ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है। गिरीश निशाना के साथ बिशंबर बिट्टू की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, गुरदासपुर, पंजाब। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Gatha Sagar. Gatha Sagar is a celebration of genius. Watch Shyam Benegal and other renowned Indian directors